Hello everyone. Now in our irrigation engineering, today we are going to see our next chapter, method of irrigation. Now before we going to see our next chapter, in a previous video we saw that our second chapter, water requirement of crops. In second chapter we saw that introduction, what is water requirement of the crops. Suppose we have essential to maintain quantity of readily available moisture in the soil by irrigation. So usually water requirement of a crop is expressed in a water depth per unit area is total quantity of water required is equal to consumptive use plus application and conveyance losses and special needs. So it is WR is equal to A plus B plus C. A is equal to consumptive use, B application and conveyance losses, and some C is equal to special needs. And then after we saw depth of water applied during irrigation, then duty of water and delta, very important theory. Then after we saw method of reckoning duty, types of duty like gross duty, nominal duty, economical water duty, designated duty, and relation between duty and delta. Then some terms related to irrigations like crop period, base period, rabi crops, it's also known as winter crops. Then kharif crops like kharif crops also known as monsoon crops. Then core period, pillow and gross commanded area. Then intensity of irrigation, crop ratio, time factor, outlet factor, capacity factor, efficiency of irrigation. So what is efficiency of irrigation? It is ratio between amount of water stored in the soil and total amount of water applied to the soil. So it is efficiency of irrigation. Then factor affecting duty of water. So there are different parameters that affect the duty of water like method of irrigation, system of irrigation, method of cultivation, type of crops, base period of crops, then climatic condition of the area, time of irrigation and frequency of cultivation, quality of water, method of assessment of irrigation water, canal condition, type of soil and subsoil of the canal, type of soil and subsoil of the irrigation field. Then we saw conservative use of water like evapotranspiration. Then after we saw some example based on it. Then irrigation efficiency, so water conveyance efficiency, water application efficiency, water use efficiency, water storage efficiency, water distribution efficiency, conservative use efficiency. Now our next chapter, method of irrigation, very most important chapter. So in this chapter we see method of irrigation, choice of irrigation method, surface irrigation method, in surface irrigation method, furrow method and contour method. ठीक है. सो मेथड ऑफ इरिगेशन में हम देखेंगे मेथड ऑफ इरिगेशन, देन चॉइस ऑफ इरिगेशन मेथड, सरफेस इरिगेशन मेथड, क्या होता है सरफेस इरिगेशन मेथड, उसमें देखेंगे फुरो मेथड, कंटूर में फार्मिंग, देन सब सरफेस इरिगेशन मेथड, स्प्रिंकलर इरिगेशन. इन स्प्रिंकलर इरिगेशन essential requirement of a good sprinkler irrigation, then moisture distribution patterns and uniformity of coverage, then drip irrigation, suitability of drip irrigation, then surface and subsurface drip irrigation system and drippers. So first of all method of irrigation. ठीक है. So before we going to see method of irrigation, first of all व्हाट इज़ इरिगेशन. इरिगेशन क्या है, फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन में देखा था. सो व्हाट इज़ इरिगेशन. इरिगेशन को कैसे डिफाइन करेंगे. इरिगेशन इज डिफाइन एज द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियली सप्लाइंग वाटर टू द सॉइल फॉर द रेजिंग क्रॉप्स. ठीक है. तो क्रॉप्स को रेज करने के लिए आर्टिफिशियली हम सॉइल को वाटर सप्लाई करेंगे. सो इट इज़ कॉल्ड इरिगेशन. ठीक है. एंड नाउ व्हाट इज़ इरिगेशन इंजीनियरिंग. सो इट इज़ द साइंस डील विथ planning, designing, construction, operation and maintenance of various irrigation works. कौन सा साइंस है. इट इज़ साइंस
किससे डीलिंग करेंगे? प्लानिंग, डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वेरियस इरीगेशन वर्क्स। सो कौन कौन से वर्क्स हो गए इरीगेशन वर्क्स? इट्स इंक्लूड्स कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम एंड रिजर्वायर, कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल सिस्टम, कंस्ट्रक्शन ऑफ हेडवर्क्स, study and design of work in a connection with river control, drainage of waterlogged area and generation of hydroelectric power. So now हम irrigation कैसे करेंगे? So there are different method of irrigation. So irrigation water may be applied to the crops by 3 basic method. ठीक है, simple 3 basic method है. तो first is surface irrigation method. First method क्या है? Surface irrigation method. Second sprinkler irrigation method, and third is subsurface irrigation method. So there are 3 basic method for the irrigation: surface irrigation method, sprinkler irrigation method and subsurface irrigation method. So the various method of irrigation are indicated below. So irrigation method are surface irrigation, subsurface irrigation and sprinkler irrigation. ठीक है, there are 3 method, basic 3 method for irrigation. So now in a surface irrigation, तो surface irrigation में कौन कौन सी सब मेथड आएगी? फ्लडिंग मेथड, फूरो मेथड एंड कंटूर मेथड. ये सब मेथड हम देखेंगे डिटेल में. ठीक है, सो याद रखो सरफेस इरिगेशन में क्या आएगा? फ्लडिंग मेथड, फूरो मेथड एंड कंटूर मेथड. सो इन अ फ्लडिंग मेथड देर आर ऑल्सो 2 सब method like wild flooding and controlled flooding. ठीक है, wild flooding is also known as uncontrolled method, यानी uncontrolled irrigation. So controlled flooding में क्या आएगा? free flooding, contour laterals, border strips, checks basin, basin flooding and zigzag method. So there are different type of method for irrigation. Now choice of irrigation method. अब क्या है कि कौन सी मेथड कब यूज़ करेंगे? ठीक है, सो चॉइस ऑफ इरीगेशन मेथड. सो फैक्टर अफेक्टिंग चॉइस ऑफ द इरीगेशन मेथड. सो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर दैट अफेक्ट द चॉइस ऑफ इरीगेशन मेथड. तो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे इरीगेशन मेथड चॉइस करने में? तो फर्स्ट इज सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लैंड टू बी इरीगेटेड. ठीक है, कि जो सॉइल है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो उसके हिसाब से हम लैंड को इरीगेट करेंगे. देन टोपोग्राफी ऑफ द एरिया, एरिया की टोपोग्राफी क्या है. देन अवेलेबल वाटर सप्लाई, कि हमें वाटर सप्लाई कैसे अवेलेबल है, जैसे कि बोर में से है, कैनाल में से है, या एनी कोई भी मेथड, मतलब एनी कोई भी रिसोर्सेज. सो दिस इज़ द फैक्टर, द अवेलेबल वाटर सप्लाई. देन टाइप ऑफ क्रॉप, कौन से टाइप का क्रॉप है, ज़्यादा इरीगेशन की रिक्वायरमेंट है या कम है, एंड इट्स वाटर रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली. देन साइज ऑफ द स्ट्रीम सप्लाइंग इरीगेशन वाटर, स्ट्रीम की साइज़ क्या है, ठीक है, इरीगेशन सप्लाई करने के लिए. सो दिस इज़ द फैक्टर दैट अफेक्ट द चॉइस ऑफ इरीगेशन. देन नेक्स्ट रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ द सॉइल. ठीक है, कि जो सॉइल है उसकी कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से कि उसकी इनफिल्ट्रेशन प्रॉपर्टीज़ क्या है, कितना वाटर ऑब्जर्व करेगी. देन डेप्थ ऑफ द वाटर टेबल. ठीक है, कि वाटर टेबल की डेप्थ कितनी है. देन डेप्थ ऑफ द रूट जोन ऑफ द प्लांट का जो रूट है उसकी डेप्थ क्या है, कितने एरिया में स्प्रेड हुआ है. सो दिस इज ऑल्सो अफेक्ट द चॉइस ऑफ द इरीगेशन. देन अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू द अर्थ इरीगेशन, कितने अमाउंट में पानी चाहिए. देन पॉसिबल इरोजन हज़ार्ड टू सॉइल. सो देर आर 10 फैक्टर दैट अफेक्ट द चॉइस ऑफ इरीगेशन मेथड. नाउ द मेथड ऑफ इरीगेशन शुड फुलफिल द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, सो द मेथड ऑफ इरीगेशन शुड बी सच दैट एन एडेक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर इज स्टोर्ड इन द रूट जोन ऑफ द प्लांट. ठीक है, ऐसी मेथड होनी चाहिए कि जो हम अमाउंट में जो वाटर सप्लाई करें वो रूट जोन प्लान के रूट जोन है उसमें स्टोर होना चाहिए. द मेथड शुड एंश्योर यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ वाटर. ऐसी मेथड होना चाहिए जिसमें यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ वाटर. ठीक है, मैक्सिमम वाटर का यूज़ होना चाहिए. ठीक है, द मेथड शुड नॉट कोज सॉइल इरेजन प्रॉब्लम. ठीक है, मेथड ऐसी होनी चाहिए कि वहाँ पे ड्यूरिंग इरीगेशन सॉइल का इरेजन प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए. देन द अमाउंट शुड बी एफिशिएंट विथ मिनिमम वेस्टेज ऑफ वाटर. ठीक है, मैक्सिमम
पानी का यूज़ होना चाहिए, देयर इज़ नो वेस्टेज ऑफ वाटर, कि कोई भी रीज़न से पानी का वेस्ट नहीं होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। द मेथड शुड नॉट बी एक्सपेंसिव, मेथड जो इरिगेशन मेथड है वो एक्सपेंसिव नहीं होनी चाहिए। द मेथड शुड बी सच डेट द लैंड इज़ नॉट वेस्टेड फॉर कंस्ट्रक्टिंग फील्ड चैनल और बॉर्डर, ठीक है, कि ऐसी मेथड होना चाहिए कि जो लैंड है वो वेस्ट नहीं होनी चाहिए, लाइक कंस्ट्रक्शन करेंगे चैनल और बॉर्डर्स। द मेथड शुड बी सूटेबल फॉर यूज़ द इकोनॉमिकल कन्वेंशन स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसी मेथड होनी चाहिए, सूटेबल होनी चाहिए, ठीक है, जो इकोनॉमिकली कन्वीनियंस होना चाहिए स्ट्रक्चर के लिए। देन द मेथड शुड बी फिट प्रॉपरली टू द बाउंड्री ऑफ द लैंड टू बी इरीगेटेड। द मेथड शुड नॉट बी इनकन्वीनियंट एंड डिफ़िकल्ट, ठीक है, ऐसी मेथड नहीं होनी चाहिए जो इनकन्वीनियंट हो और डिफ़िकल्ट हो। द मेथड शुड नॉट कॉज वाटर लॉगिंग इन द इरीगेटेड लैंड, ठीक है, वाटर लॉग इल इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ड्यूरिंग इरीगेशन। सो दिस इज़ द मेथड ऑफ इरीगेशन शुड फुलफिल the objective. Now next is surface irrigation method. next हमारा टॉपिक है surface irrigation method. So in the surface irrigation method क्या होगा surface irrigation method में? The irrigation water is applied by spreading in the form of seed or a small streams on the land to be irrigated, ठीक है। कैसे वाटर सप्लाई करेंगे? स्प्रेड करेंगे, वाटर को स्प्रेड करेंगे किस फॉर्म में? सीड और अ स्मॉल स्ट्रीम, ठीक है, छोटी सी सीड के फॉर्म में या स्मॉल स्ट्रीम, छोटा सा स्ट्रीम के फॉर्म में हम लैंड को इरिगेटेड करेंगे। सो इट इज़ द सरफेस इरिगेशन मेथड। सो in the surface irrigation method, the irrigation water is applied by spreading in the form of seed or a small stream on the land to be irrigated. So surface irrigation method, flooding method, furrow method and contour farming. So in a flooding method, wild flooding or control flooding. So all the above method of the surface irrigation are adapted for the perennial irrigation system, ठीक है। So the inundation irrigation system adopt only the wild or uncontrolled flooding method of the irrigation, ठीक है। So जो above method है, कौन कौन सी मेथड? सरफेस इरिगेशन मेथड, फ्लडिंग मेथड, फुरो मेथड, कंटूर मेथड। So surface irrigation method, so in this method the surface irrigation are adapted for the perennial irrigation system. So first of all, what is perennial irrigation system? So किसे कहेंगे perennial irrigation system? So in this system of irrigation in which water is supplied as per the crop requirement at regular interval, कि क्रॉप को एक सम टाइम में पानी की ज़रूरत होगी, ठीक है। सपोज हम सोइंग करेंगे एंड उसको हम कल्टीवेट करेंगे एट द टाइम जो पानी की रिक्वायरमेंट होगी, और इंटरवल में सम इंटरवल में पानी की रिक्वायरमेंट होगी, इसे हम क्या बोलेंगे? पेरेनियल इरिगेशन सिस्टम। सो ये कैसे हम अप्लाई करेंगे? सरफेस इरिगेशन, पेरेनियल इरिगेशन सिस्टम। द इंड्यूंडेशन इरिगेशन सिस्टम एडेप्टेड ओनली द वाइल्ड और अनकंट्रोल फ्लडिंग मेथड ऑफ इरिगेशन, ठीक है। तो इंड्यूंडेशन इरिगेशन सिस्टम क्या है? सो इन इंड्यूंडेशन इरिगेशन सिस्टम दैट system of irrigation in which a large quantity of water flowing in a river during flood allow to the flood or inundate the land to be cultivated, ठीक है, कि हम फोर्सफुली वाटर सप्लाई करेंगे, ठीक है, क्वांटिटी ज़्यादा होगी, फ्लडिंग में हम सप्लाई करेंगे। सो द टू मेथड आर अप्लाइड इन सरफेस इरिगेशन मेथड में कौन कौन सी होगी? पेरेनियल इरिगेशन सिस्टम एंड इंड्यूंडेशन इरिगेशन सिस्टम। नाउ नेक्स्ट इज वाइल्ड फ्लडिंग. So wild flooding method is the earliest and the primitive method of the application of water to the land, ठीक है। वर्ड से भी आप सजेस्ट कर सकते हैं कि वाइल्ड फ्लडिंग मेथड में क्या होगा? फोर्सफुली वाटर सप्लाई करेंगे, क्वांटिटी ऑफ वाटर ज़्यादा होगी। सो इन अ वाइल्ड फ्लडिंग मेथड इज़ द अर्लीस्ट एंड द प्रिमिटिव मेथड ऑफ द एप्लीकेशन of water to the land. So in this method water is applied by spreading it over the land, ठीक है, थ्रू आउट लैंड में हम स्प्रेड कर देंगे पानी को।
So prior to the application of water, no land preparation is done in the form of levees और fill ditches. ठीक है, कि क्वांटिटी ऑफ वाटर ज़्यादा होगी, सो देर इज़ अ नो प्रिपरेशन डन इन द फॉर्म ऑफ लीवीज और फिल डिचेस और बॉर्डर. वहाँ पे पानी रोकने के लिए कोई हमें बॉर्डर या फिल डिचेस की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी बिकॉज ऑफ वाइल्ड फ्लडिंग. द वाटर इज अलाउ टू द फ्लो ऑफ नेचुरल स्लोप ऑफ द लैंड. ठीक है, कि जैसे ही स्लोप मिलेगा पानी अपना रास्ता खुद ढूंढ लेंगे. ठीक है, सो देर इज द वाटर इज अलाउड टू फ्लो नेचुरल स्लोप ऑफ द लैंड. सो देर इज़ नो कंट्रोल ऑन द फ्लो ऑफ वाटर. कोई कंट्रोल नहीं होगा. ठीक है, फ्लो ऑफ वाटर में, एज देर इज़ नो लीवीज टू गाइड वाटर. कोई लीवीज नहीं होगी जो वाटर को गाइड करे कि ये रूट में जाना है, वो रूट में जाना है. कोई लीवीज नहीं होगी. सो इट इज़ वाइल्ड फ्लडिंग. सो इन दिस मेथड वाटर में बी अप्लाई टू द लैंड डायरेक्टली फ्रॉम द नेचुरल स्ट्रीम और रिवर ड्यूरिंग फ्लड. ठीक है, सो ये मेथड में क्या होगा, वाटर इज अप्लाई टू द लैंड डायरेक्टली फ्रॉम द नेचुरल स्ट्रीम और रिवर ड्यूरिंग फ्लड. सो एज इन द केस ऑफ इंजुंडेशन इरिगेशन सिस्टम. अल्टरनेटिवली द वाटर में बी अप्लाई टू द लैंड फ्रॉम द fill channel or the water courses as in the case of perennial irrigation system. So this method of irrigation is suitable for a smooth and flat land. ठीक है, ये मेथड किस टाइप की लैंड के लिए पॉसिबल है, तो इट इज़ सूटेबल फॉर स्मूथ एंड फ्लैट लैंड फॉर विच नो प्रिपरेशन ऑफ लैंड इज़ नॉर्मली रिक्वायर्ड. के लैंड की प्रिपरेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी. सो इन सच अ केस समवॉट better water application is achieved. So moreover, this method of irrigation is well adapted to the land that have such irregular surface that the other irrigation method are impractical. However, this method of irrigation involves wasteful use of water. ठीक है, पानी का वेस्ट होगा इन दिस मेथड में, एंड हेंस इट इज़ प्रैक्टिस ओनली वेयर वाटर इज़ अवेलेबल फॉर इरीगेशन इन द अब्यूंडेंस एंड इट इज़ इनएक्सपेंसिव. ठीक है, ये मेथड कब यूज़ होगी, पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होगी एंड इट इज़ अवेलेबल इन द क्वांटिटी ऑफ वाटर. सो इट इज़ वाइल्ड फ्लडिंग. सो सरफेस इरीगेशन मेथड में कौन कौन सी मेथड आएगी, फ्लडिंग मेथड, फूरो मेथड एंड कंटूर फार्मिंग. फ्लडिंग मेथड में कौन सी आएगी, वाइल्ड फ्लडिंग एंड कंट्रोल फ्लडिंग. कंट्रोल फ्लडिंग में क्या आएगी, फ्री फ्लडिंग, कंटूर लिटरल्स, बॉर्डर स्ट्रिप्स, चेक्स बेसिन एंड बेसिन फ्लडिंग एंड जिगजैग मेथड. So there is different type of irrigation method.